Hello student, I am Sandeep Singh, your SST teacher, and this is your chapter 15, natural disasters. It means in nature there are many coincident by the natural powers and it harm to the people of animals and human as well as, so it is called natural disasters. So let's start now. Natural disasters are devastating events caused by natural force by earth. Devastating means everything lost by the natural force. Okay? They cause widespread damage of life, property and land. Earthquake, flood, cyclone and tsunami are natural disasters. There are many types of natural disaster like earthquake, floods, cyclones and tsunami. However, some disasters like flood and drought can also human made. These are the natural disasters, but there are some disasters which are created by the human made. So it is called human made like a flood and drought. Okay. So let us look at the first disaster is like a earthquake. Okay. Earthquake. What is earthquake? An earthquake is a sudden shocking of earth's surface. They are caused by movement inside the earth. Earthquake is a sudden shaking. It means moving of the earth's surface. Vibrate of the earth's surface suddenly is called earthquake. Okay. Earthquake range is strength from mild tremor that can be barely be felt, violent movement that cause massive destruction of life or property. Due to the earthquake, there are massive destruction and life of property because human has made the many types of construction like buildings, road, factories, and these are the disaster by the earthquake. The strength of the earthquake can be measured using Richter scale. The Richter scale measures the strength and earthquake and scale of 1 to 10. जो हम अर्थक्वेक को नापते हैं उसको हम रिचर स्केल बोलते हैं और रिचर स्केल जो है 1 से 10 के बीच में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ टेबल्स दिए गए हैं, रिचर स्केल का रीडिंग दिया गया है और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक की तीव्रता क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 to 4 रिचर स्केल रीडिंग अगर होती है तो इसका मतलब है माइनर अर्थक्वेक, यानी ये जो है अर्थक्वेक बहुत ही हल्का है। ओके, इससे नुकसान नहीं होता है, बस आपको महसूस होता है कि अर्थ जो है अर्थ में वाइब्रेशन हो रहा है, अर्थक्वेक जो है आ रही है। दूसरा 5 मॉडरेट अर्थक्वेक, यानी अगर आप खड़े हैं तो वहाँ पर आप हिलते डुलते नज़र आएंगे, यानी आप अपनी स्थिरता को बरकरार नहीं रह सकते हैं। इसको हम मॉडरेट यानी थोड़ा सा ज़्यादा अर्थक्वेक इसको कह सकते हैं। 6 वाला जो है अर्थ स्ट्रॉन्ग अर्थ, ये जो है बहुत शक्तिशाली होता है, इसमें टूट फूट या संभावना हो सकती है। 7 जो मेजर अर्थक्वेक होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, हालांकि अभी 7 लेवल का जो अर्थक्वेक है वो मतलब विश्व में कहीं नहीं आया है। सबसे अधिकतम जो है वो अर्थक्वेक 6.5 तक ही आया है, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं आया। और 8 जो है अगर आता है 8 अर्थक्वेक तो वो पूरी तरह से एक तबाही लाने वाला होता है, वहाँ पर कुछ भी बचने का संभव नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे ये अर्थक्वेक है। अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, द अर्थक्वेक स्ट्रक नेपाल इन अप्रैल 2015। 2015 में एक भूकंप आया था नेपाल में, जिसमें 9000 लोग
मारे गए थे नेपाल में और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। ओके, इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या क्या होता है ये देखेंगे। द अर्थक्वेक कैन कॉज एनॉर्मस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ड्यू टू द अर्थ there are many enormous damage of life and property. They can disrupt the power and water supply. Earthquake has disturbed the all types of human activities like water supply, road transport, railways, and production also disturbed by the earthquake. They can cause landslide and even tsunami. Due to the earthquake, the tsunami and flood also occur. Okay, precaution. What is precaution? Precaution क्या है? In event of earthquake, these are some precautions we can take. हम यानी इसके बचाव में हम इसको रोक नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक यानी भूकंप को हम रोक नहीं सकते, ना ही इसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फला दिन के समय फला समय ये भूकंप आएगा। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर भूकंप आता है तो हम उसके लिए प्रिकॉशन यानी कुछ पूर्व सावधानी रख सकते हैं, जिससे कि हम भूकंप से ज़्यादा नुकसान से हम बच सकते हैं। ओके, सो व्हाट कैन बी स्टेप शुड बी टेकन in event of earthquake? There are some precaution we can take. Drop to the ground, cover your head with both hand and hold some strong. Stay away from walls and hide below strong table. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है कि अगर मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, साइड में दीवार आ रहा है या अगर आपको अर्थक्वेक महसूस हो रहा है, तो इस तरह से आप अपने हाथ को सर को ढक करके इस तरह से आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं और बैठ जाना है, नीचे बैठ जाना है, अपने सिर को बचा लेना है। दूसरा चीज़, अगर आपके पास कहीं दीवार है तो दीवार से ऐसे आपको सट के रहना है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो सके। ओके, एंड अगर आप कहीं रूम में हैं तो उसके टेबल या बेंचेस के नीचे और बैग को अपने सिर पर रख करके इस तरह से बैग को अपने सिर पर रख करके आपको दूर भागना होता है। इस तरह से आप भूकंप से बच सकते हैं। ओके, कीप फर्स्ट एड किट रेडी। आपके पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए ताकि अगर छोटे मोटे घाव होते हैं या किसी को चोट लगती है तो उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, रन आउट हाउस एंड ओपन स्पेस इज पॉसिबल, डू इफ पॉसिबल डू नॉट स्टैंड अंडर द ट्री नियर बिल्डिंग्स। आपको तुरंत भाग करके एक खुले जगह में चले जाना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके आसपास कोई बिल्डिंग ना हो, ना ही कोई पेड़ हो, ना ही पे बिजली के खंभे हो, यानी पूरी तरह से खुला हुआ स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट डिजास्टर इज फ्लड। व्हाट इज फ्लड? फ्लड ऑकर व्हेन द वाटर इन रिवर राइजेस ओवरफ्लो। व्हेन the water of river is overflow, it occur that floods. They caused by heavy rainfall. It is caused by the heavy rainfall and the melting snow during summer. यानी दो तरह से बाढ़ आती है। पहला या तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है या तो बहुत तेज़ी से जब बर्फ़ पिघलता है तो इससे जो है फ्लड बाढ़ आ सकती है। दे कैन आल्सो काज बाय ह्यूमन एक्शन, और ये आदमी के कारण भी हो सकता है, लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड लेटिंग आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम रिजर्वायर। ओके, इन इंडिया
States of Assam, West Bengal, Odisha, Bihar and Uttar Pradesh often face fiery floods. In India, there are many states, northern India especially, have trouble with heavy flooded every rainy seasons like West Bengal, Odisha, Bihar, Uttar Pradesh. Okay, effects of floods. Lives, both human and animals, are lost during floods. Flood destroy crops and properties. Okay, people lose their homes. There can be shortage of drinking water and foods. The waste left behind by the flood waste can cause epidemic. अब बाढ़ से हमारे पास कौन कौन सी समस्या होती हैं? जो जानवर और पशुओं, जानवर और आदमी यानी मनुष्यों के लिए भी, दोनों के लिए समस्या होती है। इससे लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की भी सुरक्षा खत्म हो जाती है, संपत्ति भी नष्ट हो जाते हैं और अधिकतर अपने घर उनके गिर जाते हैं, घर उनके नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ पानी की और भोजन की समस्या सबसे ज़्यादा होने लगती है। ओके, एंड बिहाइंड जब हम अगर बाढ़ जब ख़त्म हो जाती है तो बाढ़ के ख़त्म होने के बाद भी कई तरह की समस्याएं होती है। मेनी टाइप्स ऑफ एपिडेमिक आल्सो स्प्रेड ड्यूरिंग आफ्टर द फ्लड्स। ओके, बट फ्लड्स आर आल्सो ब्लेसिंग फॉर फार्मर्स। लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो फ्लड्स का एक अच्छा हिस्सा भी हमारे सामने आता है, वो किसानों की मदद भी होती है। द कवर द ग्राउंड विथ रिच सिल्ट दिस एनरिच सॉइल एंड मेक सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इससे क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टियाँ जो होती हैं वो बाढ़ के द्वारा यहाँ पर डिपॉजिट की जाती हैं, जिससे कि हर साल नई मिट्टी आ जाती है और इस मिट्टी में, नई मिट्टी में बहुत ही अच्छी फसल होती है। प्रिकॉशन। नाउ व्हाट शुड बी प्रिकॉशन taken during the flood season? In event of flood, these some precaution we take. हम कुछ precaution ले सकते हैं। Place sandbags in front of the house, prevent water from entering the house. अगर आपका घर बाढ़ के एरिया में आता है तो आप अपने घर के सामने जो है बोरी में बालू भर करके रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर का कटाव नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है मूव हायर ग्राउंड वेयर वाटर कैन नॉट रीच। आप ऐसे ऊंचे स्थान पर चले जाइए जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगला पॉइंट है साइक्लोन। अ साइक्लोन इज अ मैसिव स्टॉर्म दैट ब्रिंग विथ फायर्स, वाइंड, हैवी रेन। ओके, cyclone is a massive storm. It means that a cyclone is occur from the ocean or seas when the low pressure are made into the water of sea and the air round and round it may cause the cyclone. The wind and cyclone can reach speed of over 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो साइक्लोन यानी तूफान होते हैं ये लगभग 60-70 किलोमीटर की तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं और ये समुद्र के किनारे पर तबाही मचाते हैं। साइक्लोन यूजली फॉर्म ओवर वार्म ओशन। ये अधिकतर कहाँ पैदा होते हैं? गर्म वाले ओशन में पैदा होते हैं। इन द ट्रॉपिकल रीजन दे शक मॉइस्ट एयर द स्पेशल टूवर्ड द लैंड विथ ग्रेट फोर्स। यानी अगर आप हम देखें तो जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहीं पर साइक्लोन ज़्यादा पैदा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए ऊपर से जब गर्मी पड़ रही है और गर्मी पड़ने के साथ साथ नीचे जब हवा का दबाव, समुद्र का पानी जो होता है वो गर्म होकर के भाप बनता है, तो दोनों का टेम्परेचर को मिक्स होता है, तो वहाँ पर एक लो प्रेशर बन जाता है जिससे कि हवा को बहुत तेज़ी से घुमा देता है और इसी कारण से वहाँ पर जो है तूफान आने शुरू हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, इसके प्रभाव क्या होते हैं? साइक्लोन डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स, यानी तूफान के द्वारा बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी भी नुकसान होते हैं। समटाइम्स शार्प साइक्लोन कैन कॉज मैसिव वेव फ्रॉम सी, यानी बहुत तेज़ी से एक वेव्स आते हैं और ये वेव्स
कोस्टल एरिया में फ्लड and lost the life destruction properties. Okay, precaution. What should be precaution after the cyclone? In the event of cyclone, these are some precautions we can take. Follow the weather forecast on the television, radio or newspaper. When cyclone or storms may be come to the surface, it will be announced by the meteorological department that and the some parts of the it would be face a cyclone or storm may be in every year. Accurate and timely weather forecast help people move time to time safe place. If a massive storm would be come in your area, then you have to go to safe places to escape from the cyclones or storm. Be prepared to leave a moment's notice. Keep a bag ready with set, dry clothes, important documents and medicine. And put your important documents, medicines and be safe from the cyclone drought. Okay? In next video we will explain about drought. It means why droughts are occurs in the earth and what are causes and what are the precautions should be taken by us. Till then, goodbye. Thank you.